nomenclature. Now, like we have the SI system in physics, SI system is international standard internationally the unite. Yeah? बोलते हैं उसको इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें ही फॉलो करते हैं ऐसे जब ऑलरेडी केमिस्ट्री की बात आती है तो हम IUPAC नेम देखते हैं IUPAC स्टैंड फॉर व्हाट इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड applied chemistry. Clear? Maybe you will not find it in the book. System of it is there. It's International Union of Pure and Applied Chemistry. We call it IUPAC. Now it's a big system for naming the what organic compounds. But in our syllabus, we have very limited naming. Most of it we have already completed, but we're going to read it today. Let's do it. Write down. First rule. We call it longest chain rule. We have already done this rule, but we'll do it again. Longest chain rule means if a hydrocarbon has branch chains, it has branches of chains. So we have to take the longest carbon chain as the what? As the main chain. As the main chain. Like, let's take one example. Let's say we have CH3, CH2, then CH and CH3. All of you know now how to make the condensed formula of any hydrocarbon, right? Now see, there are three chains possible. For this one, there are three possibilities. Let me copy it. Here I'll paste it. And let's see, we can consider this, we can name this hydrocarbon in three ways. But rule says what? Longest carbon chain will be taken as the main chain. Which carbon chain? Longest carbon chain. 1, 2, and then 3, the third case. Now, somebody will say, sir, we can take this as the carbon chain. I can say, okay. Then in case if you take this as the carbon chain, then CH3, this CH3 will be the what group? Substituent group. Somebody will say, sir, can't we take this as the main chain and this as the substituent group? मतलब वो chain हो गई और इधर वाले वो दोनों. Somebody will say, sir, can't we take this as the main chain and this will be taken as the substituent group? That's the main chain, then substituent. That's the main chain, then substituent. Then the main chain. Is it clear? So rule says that we have three possibilities for the chain, but longest chain will be the correct. So here we have 1, 2, 3, 4, 5 carbon chains, and these two will be wrong because here carbon chain has only 4 carbons. This carbon chain has only 4 carbons. So both are wrong. Now once we have chosen our chain, then what about the numbering? We'll count the numbering from the left to right, then right to left. 1, 2, 3, 4, 5. The substituent group, जो मेहमान है CH3, this is coming at 3 from the top also and bottom also. दोनों chain में वही आ रहा है. क्या उधर से numbering करें चाहे यहाँ से numbering करें बात हुई है. इसका नाम क्या होगा बेटा? 3 पे methyl. What? ग्रुप का तो नाम दे दिया हमने. इसका नाम लिख दिया ब्लू वाले पार्ट का. येलो वाले पार्ट का नाम बताइए क्या होगा? कितने कार्बन है? बिल्कुल सही. Pentane. So this was called the longest chain rule. All right. Longest chain rule. Let me give you some more examples. Let me give you some more examples. Now here from both the sides, numbering of methyl was same. Methyl की numbering same आई थी दोनों साइड से, है ना? तो हमने उसको कोई भी numbering ले ली. But in some cases it can even come like, let's say of carbon, 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 and this carbon is on the second position. So we can write it as CH3. This carbon has reached CH2. This carbon has 3 bonds complete, so CH, CH3, CH3. So what will be the main chain?
You can take this as the main chain. Someone can take this also as the main chain, and that will also be right. Because this chain will also have how many carbons? 4. Same बात होगी बेटा. अगर आप ऊपर वाले को मेन चेन मानते हैं तो भी सही बात है, नीचे वाले को मेन चेन माने तो भी सही बात है. आप सुनिएगा. So this has what? 1, 2, 3, 4. ओके, थर्ड पे आ रहा है हमारा मिथाइल. इधर से काउंट करें तो 1, 2, 3, 2 पे आ गया भाई. So this is wrong, this is correct, and the name of this compound will be 2 पे मिथाइल, जो मेहमान है भाई का, और अपना ब्यूटेन. Is this clear to all of you? Yes. अगर हम इधर से नीचे ले लें तब भी बात वही होगी. CH3, CH2, CH in the same compound. If you take this as the main carbon chain, if you take this as the carbon chain, check which one. This is the carbon chain if you take. Get it? CH3, CH2, CH, CH3. Understood or not? How many carbon? 4. And this will be what? This will be what? Substitute group. इसका नाम पहले लेंगे. चलिए नंबरिंग करते हैं. 1. कार्बन की नंबरिंग करिए यहाँ से 1, 2, 3, 4. 3 पे आ रहा है नीचे से. इधर से करके 1, 2, 3, 4. 2 पे आ रहा है. ये ठीक है गलत है. Is this clear? Understood? तो सेम हुआ ये भी. 2 पे मिथाइल और इथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन. बात तो ये दोनों सेम ही है, तो इसमें भी चेंज नहीं. चलिए कोई एग्जांपल देते हैं. कॉपी क्विकली बेटा. चलिए बेटा, let's see the next example. Copy from seven. Take the next one. This is very important beta. Third compound for longest chain rule. CH3, CH2, CH, C2H5, CH3. Check carefully. Take it. Longest chain rule. Mitali sir sat करेंगे. Now Summerfield says, sir, this is the longest chain, and this will be the substituent group. If I take it like this, how many carbons will come in the longest chain? 3, 4. Okay. And that C2H5 is called ethyl. What do we call it? But that's wrong. Because if I take this as the longest chain, this will be the longest chain. How? Yes, it will have more carbon. How many? 1, 2, 3, 4, 5. So this C2H5 is written in the condensed form. If I extend it, it is actually 2 carbons. C2H5 has how many carbons? 2 carbons. C2, 2 carbon only expand कर दी. First, this first carbon has how many bonds complete? 2. So 2 more H will come. H2. This has 1 bond complete. अब जरा इसको expand करके बनाइए. बताइए longest chain है कि नहीं? Most of the students will take that as the longest chain जो पहले किया था. और वो इथाइल लिख देते हैं, जबकि ये होगा substituent. इसकी नंबरिंग करिए. बात तो वही है. 1, 2, 3 और 4, 5. 3 पे आ रहा है. यहाँ से करेंगे तो 1, 2, 3. दोनों तरफ से 3 पे आ रहा है. तो 3 पे कौन आएंगे? 3 पे मिथाइल. What? Pentane? No. What? Butane? कितने कार्बन है? 5. Pentane. 5 तक आपके सिलेबस में है. So longest chain rule is clear, or should I give you more examples? Plus 5. हाँ? Plus 5. You can even get 2 alkyl group same chain. ये वाला, इसमें बेटा ये वाली चेन लॉन्गेस्ट चेन है. यहाँ से यहाँ सीधी लेट से तो उसमें 4 आ रहे थे, और जब नीचे तक लिया पूरा ऐसा ब्लू वाला बना है, इसमें 5 कार्बन हो. तो C2H5 में 2 कार्बन थे,
उसे खोल के लिखा है यहाँ पर, 2 कार्बन अलग अलग करके लिखे, 2 कार्बन लिखे तो C और C 2 बार है यहाँ पर, C C, ये C है, इसके 2 बॉन्ड कंप्लीट है तो कितने H डालने पड़ेंगे इसके बाद, CH2, इसके साथ एक ही बॉन्ड कंप्लीट है CH3, इन दोनों को कंबाइन करके बताइए क्या होता है, C2H5, तो वही C2H5 लिखा, तो वो देखने में लग रहा था कि एक कार्बन है पर फिर 2 कार्बन, अगर उसको मतलब कर देंगे ऊपर वाले के लिए तो गलत हो जाएगा, फिर लॉन्गेस्ट चेन को मेन चेन लिखते हैं, रूल का नाम ही है लॉन्गेस्ट चेन रूल। जल्दी कॉपी कर लीजिए, कर लिया आपने कॉपी, डन, कॉपी विद मी बेटा, बेटी डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज चेक, आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल, CH3 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 and CH3, मेन चेन बताइए कार्बन की, दूसरी तो मेन चेन, मान लीजिए अगर आप आगे जाने की बजाय नीचे चले गए तभी तो कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे कि नहीं, मान लीजिए कोई ऐसे बोलेगा तब भी कार्बन कितने होंगे, 4, तो सिंपल वाली ले लेते हैं, ये हो गई हमारी मेन चेन एंड दीज टू आर व्हाट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, so we'll name them, very good, 1 2 3 4, इधर से भी वही नंबरिंग आ रही है, 1 2 3 4, what will be the numbering, 2 पे और 3 पे डाई मिथाइल ब्यूटेन, clear, understood, longest chain rule, but then I am giving you one more example, let's say if we have CH3 CH3 CH, then CH2 CH3, now numbering will be different, clearly this is the longest chain and this is a substituent group, this is a substituent, is that clear to you, understood or not, any problem, नहीं पहले छोटा नंबर आएगा, 2 3 आएगा, इसकी नंबरिंग कैसे करें बता रहे हैं अभी, इसकी नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से 2 और 3 पे आ रहा है हमारा मिथाइल, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 और 4 पे आ रहा है, तो 3 4 वाला गलत हो गया, 1 और 2, जहां से पास पड़ती है नंबरिंग वहीं से करेक्ट होती है, ये तो हम शुरू से देख रहे हैं, तो ऊपर वाली नंबरिंग करेक्ट है, उसका नाम होगा 2,3 डाई मिथाइल, यस, पेंटेन, कैपिटल लेटर कहाँ आएगा, स्मॉल का आएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉलो करिए, बिल्कुल नहीं, डन, क्लियर बेटा, चलिए लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question says next type, longest chain rule is clear, write down the heading, numbering of carbon atoms with alkyl group is clear बेटा, एल्काइल जहां से पास, एल्काइल तो पता है ना आपको, देख लीजिए, नहीं तो एल्काइल ग्रुप में होता है CH3 जो सिंगल बॉन्ड बना सकता है इसके साथ, इसे क्या बोलते हैं हम, मिथाइल, C2H5 क्या होता है बताइए, इथाइल, ये लिख लीजिए, और C3H7 फाइल, तो फाइल अल्कोहल देगा, होमोलोगस सीरीज तो आपको पता है, CH2 CH2 बढ़ाते रहिए वो आगे चलता रहेगा, CH3 है तो एक कार्बन बढ़ाइए, 2 हाइड्रोजन बढ़ाइए, क्या हो जाएगा, C2H5 इथाइल, एक कार्बन बढ़ाइए C3, 2 हाइड्रोजन H7 प्रोपाइल, so मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, understood or not, is this clear, एल्केन से कम कर, बिल्कुल सही, नेक्स्ट लिखिएगा, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम if functional group
is also present. How many functional groups do you have in our syllabus? 3. Naming of 3: alcohol, aldehyde, and carboxylic acid. Carboxylic acid will come at the end. हमें पता है वो COH अंत में ही आता है. हमारा जो aldehyde होगा वो भी एंड में आता है. उसका तो नंबरिंग का दिक्कत ही नहीं है कुछ, हमेशा एंडिंग में ही रहता है. बट ये जो अल्कोहल है OH, ये कहीं पे भी आ सकता है बीच में. तो लिखिएगा इसमें numbering of carbon atoms, numbering of carbon atoms with functional group. Functional group. Numbering of carbon atom with functional groups. लिखिएगा functional group should get the smallest number. Council has clearly written in the syllabus that only one functional group can come. पता है आपको जो functional groups होते हैं कीटोन, ईथर्स, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका भी एक हायरार्की होता है. मतलब इनका भी एक सीक्वेंस होता है. अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए तो पहला क्लोजेस्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? स्मॉलेस्ट नंबर किसको देंगे? कौन से वाले को छोटा नंबर मिलेगा? वो अलग होती है हायरार्की, वो 11th में करेंगे. 10th में ऐसा है ही नहीं. काउंसिल ने क्लियरली बोला है कि एक टाइम पे एक ही फंक्शनल ग्रुप आएगा, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कभी भी नहीं आ सकता. ठीक है, तो हम उसको डिस्कस ही नहीं करेंगे. चलिए, बट अगर हमारी कार्बन चेन में एल्काइल ग्रुप के साथ मान लीजिए CH3 है और यहाँ पर CH के साथ CH2 मान लीजिए CH के साथ ये OH आ गया, CH3 आ गया. मेन कार्बन चेन तो आपको क्लियरली दिख रही है. दिस इज द मेन कार्बन चेन. How many carbon does it have? 5. And these two will be called as what groups? Substituent groups. Now, let's see. When I number them, when I will number them, like 1, 2, 3, 4, 5. Okay? From here, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? अब सुनिएगा ध्यान से. अब अभी तक तो हम देख रहे थे कि CH3 कहाँ से पास पढ़ रहे हैं, है ना? अब दिक्कत हो गई. CH3 भी आ रहा है, उसमें OH आ रहा है, तो CH3 को भूल जाइए. हालांकि ये भी मेहमान है और ये भी मेहमान है, बट हमारी पहली प्रायोरिटी कौन होगा? फंक्शनल ग्रुप OH. वही तो आपने लिखा अभी, फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द स्मॉलेस्ट नंबर. मतलब मान लीजिए अगर घर में खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबसे पहली बारी किसकी आएगी? मेहमान की. सबसे छोटा नंबर उसी को मिलेगा. कह रहे था. सो ऊपर से ऊपर नंबरिंग देखी तो गलत है बेटा, उसमें फंक्शनल ग्रुप को 4 मिल रहा है, नीचे वाले ठीक होगी क्योंकि 2 मिल रहा है. अब सुनिए इसका नाम क्या होगा? अल्कोहल OH. ये नहीं लिख सकते आपकी भाई 2 पे अल्कोहल. नहीं, अल्कोहल की नेमिंग हमने सीखी है. इसमें क्या होता है? ई हटता है और ऑल आता है, तो पता है हमको ना. अब एक बार फिर से कर लेंगे, नहीं तो आज नॉमेनक्लेचर ये बोलो. सो 2 पे ऑल है और 4 पे कौन है? CH3 मतलब मिथाइल. उसको बोलेंगे 4 मिथाइल. कितने कार्बन है बेटा? 5. सो पेंटेन टू ऑल. पेंटेन में ई हटाकर ऑल लगा देते. फंक्शनल ग्रुप ऐसे होता है, ई हटाकर ऑल लगा दिया, ई हटाकर ओइक एसिड लगा दिया, और आप सीखेंगे ई हटाकर क्या लगा दिया? अन एल्डिहाइड जो हम करने वाले. अभी तो नेमिंग पे गए नहीं है फंक्शनल ग्रुप्स की. अभी तो हम नॉमेनक्लेचर में अभी हमने लॉन्गेस्ट चेन रूल सीखा. नाउ वी आर लर्निंग हाउ टू नंबर देम. यस सर. OH पहले क्यों नहीं लिखा? अच्छा, OH को तो नंबर तो पहले दिया, लिखिए कैसे आप? क्या लिखेंगे? नंबर पहले की ये प्रायोरिटी है बेटा, एक सिस्टम है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको पहला नंबर मिलेगा, छोटा नंबर मिलेगा. लिख ही नहीं सकते क्योंकि जो अल्कोहल होता है क्या लिखेंगे आप? 2 अल्कोहल. पहले टू है वो जो ऑल होता है फंक्शनल ग्रुप का, वो एल्केन का ई हटाकर पेंटेन का ई हटाकर लिखा. लिखेंगे पहले कैसे आप?
वो तो पेंटेन में ही आता है, वो तो कार्बन चेन में ही आता है उसका नाम। ठीक है, नाम जो ऑल है वो तो पेंटेन में, एल्केन में ही तो आएगा बेटा, वो तो बाद में नहीं, नंबरिंग किसको दिए पहले? नंबरिंग तो दे दी उसको, पर लिखेंगे तो पहले मिथाइल। हाँ लिखेंगे पहले मिथाइल, क्योंकि और लिख नहीं सकते हैं। अभी देखिए, अभी दो दो आएंगे, अभी हमने सिर्फ मिथाइल लिखा है, अभी मिथाइल और मिथाइल दोनों आएगा अभी जो हम देखेंगे। अभी ऑल तो क्लियर हो गया, इसमें कंफ्यूज मत करिए बेटा। आप चाहते हैं कि अगर ऑल को नंबर छोटा मिला है तो उसका नाम भी पहले लिखा जाए, वो नहीं लिख सकते हम, क्योंकि जो ऑल है वो तो एल्केन में लगेगा, वो तो लास्ट में ही आएगा। अगला लिखिए जरा, देखिए एक और एग्जाम्पल लिखिए जरा। देखिए CH3, CH, लीजिए CH3, CHOH और फिर CH। बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ से 1 2 3। बताइए कहाँ से आ रहा है हमारा अल्कोहल पास? यहाँ से गलत है, सही है। अल्कोहल का नंबर क्या हो गया? 2। तो आप इसमें तो 2 ऑल ब्यूटेनॉल कैसे होगा? 3 पे मिथाइल, बिल्कुल सही। ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई हटा दीजिए, ठीक है, अंडरस्टूड, इजी बेटा, राइट डाउन। If two halogens, copy this quickly। देखिए, हमने अभी सीखा बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का रूल, है ना। उसके बाद हमें नंबरिंग सीखी। नंबरिंग में अब हमने सीखा कि अगर दो कोई अल्कोहल आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप को पहले लिखना है। बट मान लीजिए अगर दो आ गए, सेम फंक्शनल ग्रुप दो बार आ गए, फंक्शनल ग्रुप नहीं एल्काइल आ गए मान लीजिए, तो किसको पास करेंगे? हैलोजन आ गए, सॉरी। हैलोजन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिएगा नेक्स्ट टाइम, देखिए if two halogens if two halogens, तो मिथाइल क्यों बोलो तो बेटा, आप तो बोल से लिखाते। देखो टू मिथाइल की बेटा, जहां से अल्कोहल पास पड़ेगा, OH जहां से पास पड़ेगा, ऊपर से OH का नंबर क्या है? 3। नीचे से OH का नंबर क्या है? 2। तो ये वाली जो नंबर है नीचे वाली, वो करेक्ट होगी। ऊपर वाली नंबर क्या हो गई है? इसीलिए नीचे आप कम से कम 10 बार बोल चुका हूँ मेरी बात, पर ध्यान से देखिए एक बार, आपने से बातें नहीं करी, इसीलिए इस नंबर को करेक्ट माना, और उसमें 3 मिथाइल। लिखिएगा जल्दी। If two halogens will come together, if two halogens will come together, then they are named alphabetically. They are named alphabetically. मतलब मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख दीजिएगा, हैलोजन में होते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एफ आता है तो फ्लोरो, Cl आता है तो क्लोरो, यहाँ से फिर साथ अभी आप डिस्कशन में देखिए, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन। अब सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, CHBr, CH2, CHCl, CH3। देखिए अभी हमने कंपैरिजन किया था, शुरू में बनाया था पहला कंपाउंड, उसमें CH3 आता दो बार, कोई टेंशन नहीं। दूसरे में CH3 के साथ क्या आ गया? OH। और दो OH नहीं आ सकते, मैंने बताया आपको, दो फंक्शनल ग्रुप नहीं आ सकते, बट दो हाइड्रोजन आ सकते हैं। तो क्या है, आप सुनिए, अगर आप यहाँ से नंबरिंग देखें तो 1 2 3 साथ तक देख लो बेटा, यहाँ से एक 2 पे आ रहा है और एक 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। नीचे से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, अभी वही है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। अब बोलिए सर तो सेम हो गया, दोनों ही सही है? नहीं, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन पास पढ़ना चाहिए, ब्रोमीन पास आना चाहिए। तो ब्रोमीन पास का असर है, ये सही है गलत? हमने जो लिखा कि अल्फाबेटिकली जो पास है
उनमें कोई सीक्वेंस नहीं है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में जो अल्फाबेटिकली पहले है, बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, तो इसलिए उसको सही माना। नाम भी वैसे लिखेंगे, 2 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो। देख लीजिए, ये तो हो गया आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बेटा, तो ये दोनों हो गए मेहमान। अब आप बोलेंगे सर इसको भी लास्ट में लिखो, आपने OH लास्ट में लिखा। बेटा OH की दिक्कत क्या थी, वो ई के साथ रख के हो जाते हैं ना, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल, वो लास्ट में आएगा, उसका सफिक्स ऐड होता है, ऑयल का तो सफिक्स ऐड। ये प्रीफिक्सेस होते हैं कुछ प्रीफिक्स में। 2 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, और क्या लिखा होगा बताइए? बिल्कुल सही। उस आपके स्कूल में टीचर बोले कि भाई इस पे डैश डैश लिखना जरूरी है, पर 10th में काट मार्क्स कटते नहीं है। 2 ब्रोमो डैश 4 क्लोरो पेंटेन, हाइड्रोजन फंक्शन फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन, ठीक है। हैलोजन भी फंक्शनल ग्रुप है, फिर से दो अलग अलग दो। चलिए ये है इस सिलेबस का है। OH और Cl एक साथ। बेटा ये तो आप कर चुके हो, दो टेट्राक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, सब किया था आपने। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था ना, एडिशन रिएक्शन किया था। मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, सब बनाया था हमने मीथेन। हाइड्रोजन बिल्कुल सही। आ जाएगा, इसे बता दें एक दो और। कहते मान लीजिए फ्लोरीन आ गया, तो पहले कौन आएगा? एक और करना है, चलिए देख लीजिए, सिंपल है वैसे। CH3, CHBr, CHCl, CH3, longest carbon chain is this is the longest carbon chain। तो पास कौन आना चाहिए? ब्रोमीन। कौन आना चाहिए पास? ब्रोमीन। तो ऊपर से भी नंबरिंग करिए, नीचे से भी नंबरिंग करिए, जिधर से भी आपको लगता है पास पढ़ रहा है ब्रोमीन, वही सही नंबरिंग होगी। 1 2 यस। सब करेंगे। तो मैंने क्या बोला आपको? दो फंक्शनल, बाबा, दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ नहीं है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। हैलोजेंस और अल्कोहल 11th में आएंगे। ये ले लीजिए, आधी बुक ले जा लीजिएगा, ये रखिए मुझे केमिस्ट्री, ये आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसी में से देंगे अभी क्वेश्चन आपको। तो 2, बाबा देखिए, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्या है? ब्यूटेन। नेमिंग तो आप करते रहिएगा, फिर बेंजीन भी बता रहे हैं आपको। इज दिस क्लियर? nomenclature is clear? Yes. ये कितने कार्बन है? कार्बन आनी चाहिए। क्वेश्चन नहीं बेटा, वो हेडिंग है, क्वेश्चन नहीं है वो, हेडिंग है, हेडिंग है वो। हेडिंग में हमने क्या लिखा कि अगर दो हैलोजन आ जाते हैं कार्बन की चेन में, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको छोटा नंबर मिलेगा। अब लिखिए हेडिंग, नई हेडिंग लिखिएगा, इफ टू एल्काइल ग्रुप विल कम। ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनेगा इसको, समझ के लिखेगा। इफ टू एल्काइल ग्रुप कम टुगेदर, एल्काइल, एल्काइल तीन ही है वैसे, कौन कौन? मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल। if two alkyl group will come together, then देखिए हमने हैलोजन में बड़ा छोटा कैसे किया। देखिए मान लीजिए अगर मेहमान घर में आए हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं हम लोग शुरू से, तो सबसे पहले किसी देंगे? तो छोटा है। तो जब हमारे पास हैलोजन आए थे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आएगी, उसमें हमने बड़ा छोटा कैसे डिसाइड किया? अल्फाबेटिकली में। बट अल्काइल में तो हम आराम से पता लगा सकते हैं कौन सा है बड़ा, कौन सा छोटा। देखिएगा, if two alkyl groups come together, then smaller alkyl gets minimum number. Smaller alkyl gets minimum number. Smaller alkyl gets minimum number, but while writing, but while writing, they are written alphabetically.
छोटा बच्चा जो है उसको पहले मिल जाएगा खाना, छोटा एल्काइल जो है उसको पहले मिल जाएगा खाना, और जो दूसरा एल्काइल है उसको बाद में मिलेगा। बट जब लिखेंगे तो क्या आएगा पहले, अल्फाबेटिकली। क्वेश्चन करते हैं तब बताते हैं आपको क्वेश्चन से। लिखिएगा एक क्वेश्चन जल्दी से, राइट डाउन। Let's say we have CH3, CH2, CH, CH3, CH, C2H5, CH2, CH3. We can even continue this. CH2, CH3. The next one we करेंगे। आप लिखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखिए सर, मान लीजिए अगर मैं यहाँ से आया, यहाँ से नीचे चला गया, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 6 हुए बेटा। नीचे वाले में C2 है, 6 हुए। अगर इधर से इधर नीचे आए तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। और नीचे तो 2 है, किसी को 2 कार्बन है ना, 6 हुए। और अगर सीधी चेन ली ऐसी तो 7। तो ये होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, if this is the longest carbon chain, then these two are what? Substituent what? Substituent groups. Is this clear? These two are substituent groups. Is that clear to you? Understood or not? Any problem? Right? CH3, CH2, C. Numbering 1 2। बताइए दोनों एल्काइल में से छोटा ग्रुप, छोटा वाला एल्काइल कौन सा है? मिथाइल या इथाइल? तो जहां से मिथाइल पास पड़ रहा है वही नंबरिंग ठीक होगी। छोटा बच्चा जहां के पास नहीं। पिछली बार फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में तो छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं, तो बोला भाई अल्फाबेटिकली जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। यहाँ पर तो दिख रहा है CH3 छोटा है, C2H5 बड़ा है। नीचे से नंबरिंग करेंगे तो गलत होगी। 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज रॉन्ग। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज करेक्ट। 3 नेमिंग करें ऊपर से। अगर मैंने लिखा 3 मिथाइल, 4 पे इथाइल, अमीन, कितने? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ठीक है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम नाम लिखते हैं तो किसमें लिखते हैं? अल्फाबेटिकली। तो 4 इथाइल, 3 मिथाइल, हेप्टेन। एल्काइल ग्रुप ये है नीचे वाले, ये तो एल्काइल होते हैं जो नीचे लटके हुए थे ब्रांच चेन में, ये हमेशा एल्काइल होते हैं। इथाइल, मिथाइल और प्रोपाइल। और वो लंबी आपकी कार्बन चेन हो गई है। एल उसको हमने हेप्टेन क्यों लिखा? क्योंकि 7 कार्बन हेप और सातों में सिंगल बॉन्ड ए। ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं आएगा किसी और फंक्शन ग्रुप के साथ। डबल बॉन्ड भी अपने आप में एक फंक्शन ग्रुप। ठीक है, जरूरी नहीं होता ना एल्काइल को हमेशा सब्स्टिट्यूट होता है। वो रहेगा। तो जैसे हमने उसमें बनाया था उसमें लॉन्गेस्ट, सुनिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद जो भी कार्बन बचता है वो एल्काइल ग्रुप पे होता है, उसमें ही था। देखिए मैदानी ने बोला कि सर अभी आपने क्वेश्चन कराया था, और मुझे याद है बेटा। देखिए मिताली ने बोला सर ये वाला क्वेश्चन C2H, ये वाला ना, हाँ, वही तो वो बचेगा जो एल्काइल है। जो भी मेन कार्बन के अलावा बच जाता है वो कौन सा ग्रुप होता है? एल्काइल ग्रुप। चलिए इसको फिर बनाते हैं। C2H5 आ सकता है, ये आ सकता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई है हमारी। नंबरिंग देंगे तो छोटा बच्चा पहले हमें पास पढ़ना चाहिए, तो हम एक ही नंबरिंग दे दें 1 2 3, क्योंकि इधर से तो दूर पढ़ रहा है। बट जब लिखेंगे बेटा तो कैसे लिखेंगे बताइए? व्हाट विल बी राइट? राइट 3 इथाइल, 2 मिथाइल, 3 इथाइल, 2 मिथाइल व्हाट? पेंटेन। इज दिस क्लियर? तो हमने क्या सीखा आज?
पहले सीखा लॉन्गेस्ट चेन रूल, वो तो बार बार यूज कर रहे हैं। उसके बाद सीखा है अगर दो फंक्शनल ग्रुप और एल्काइल आ जाता है तो फंक्शनल ग्रुप को साथ दें। हैलोजन आते हैं तो अल्फाबेटिकली जो पास होगा उसको देंगे, और अगर दो एल्काइल ग्रुप आते हैं तो जो छोटा होगा उसको स्मॉलर नंबर, बट लिखते समय हमेशा कैसे लिखते हैं? और याद रखिए हमेशा अल्फाबेटिकली लिखते हैं। चाहे फ्लोरीन क्लोरीन का भी लिख रहे हैं उनका भी लिखेंगे अल्फाबेटिकली, इनका भी लिखेंगे अल्फाबेटिकली। मतलब प्लीज हम अल्फाबेटिकली का मतलब ये होता है कि ई वाला पहले इथाइल और एम वाला बाद में। ई पहले आता है ABCD के हिसाब से, तो इथाइल पहले मिथाइल बाद में, बट फिर नंबरिंग ऐसे नहीं करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे इसमें? जो छोटा है उसको पहले। अंडरस्टूड? तो ये सब्स्टिट्यूट लिखिएगा, राइट डाउन। जो आप पूछ रहे थे वो भी लिख लीजिए। इफ halogen and alkyl number come together, if halogen and alkyl come together, if halogen and alkyl, halogen substituent and alkyl come together, तो बताइए ज्यादा मेहमान की तरह कौन लगेगा, हैलोजन या एल्काइल? मेहमान का मतलब बाहर वाला, हैलोजन लगेंगे, एल्काइल तो CH3 कार्बन का ही हुआ, तो लिखिएगा इसमें डैश करके। Halogen substituent are given smaller numbers. Halogen substituent are given smaller number. Clear? देखिए स्टडी का ध्यान से, हमने शुरुआत की थी सिर्फ एल्काइल की, अभी भी सिर्फ एल्काइल कराया, सिर्फ हाइड्रोजन कराया, फंक्शनल ग्रुप करा दिया। ये जो एल्काइल है सबके साथ आ सकता है, ये OH के साथ भी आया था, तो इसको एक बार हाइड्रोजन के साथ भी लेते हैं। देखिएगा एक कंपाउंड लिखिए जरा, मान लीजिए ऐसा है CH3 CHBr CH2 सॉरी CH3 CH3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बाहर वाले ये हो गए, ज्यादा बाहर वाला साफ साफ नहीं पता है आपको कौन है। जैसे अभी एक क्वेश्चन किया था उसमें CH3 और OH दोनों आए थे, तो मैंने क्या बोला था आपको, किसको शॉर्टर नंबर मिलेगा? फंक्शनल ग्रुप को ना। तो वैसे ही Br को भी आज फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, तो भी Br को छोटा नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4, ये करेक्ट होगी नंबरिंग क्योंकि 2 Br पे आ रहा है, समझ रहे हैं आप? नीचे वाली नंबरिंग से तो 3 पे आ रहा है Br, पक्का? अब लिखेंगे ऐसे, बताइए इसको, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल अल्फाबेटिकली, ठीक है, ब्यूटेन, पक्का? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए जरा डबल बॉन्ड भी आ सकता है हाइड्रोजन के साथ, तो देखते हैं, हमने किया है वैसे नेमिंग के प्लान। डबल बॉन्ड विद क्लोरीन, डबल बॉन्ड विद CH3, and then we are almost done. Three methyl 2 fluoro butane. अल्फाबेटिकली लिखेंगे, जैसे लिखेंगे अल्फाबेटिकली, क्लियर? ये एल्काइल, एल्काइल में क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होते हैं सब जो मेन कार्बन के बाद बच जाते हैं ना नीचे ब्रांच्ड में, ये होता है एल्काइल। और 3 एल्काइल है आपके सिलेबस में, मिथाइल इथाइल और प्रोपाइल। अभी तीनों को फॉर्मूला लिखाया था, देखिए आपका टॉपिक क्या होगा, CH3 होता है मिथाइल, C2H5 होता है इथाइल, C3H7 होता है प्रोपाइल। Write down. Let's see how to name this one. CH3, single bond CH, double bond C, CH2, CH3। तो लीजिएगा ध्यान से, अब इस बार डबल बॉन्ड भी आ रहा है और हमारा CH3 भी आ रहा है बेटा। अब किसको प्रेफरेंस दी जाएगी पास से? देखिए दो नंबरिंग में, 1 2 3 4 5, 1
2 3 4 5। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबरिंग पे नहीं जाएंगे आती है इसके अंदर। तो नीचे वाली करेक्ट है ऊपर वाली ज्यादा पास दोनों किधर से पढ़ रहे हैं CS3 तो दोनों तरफ से 3 पढ़ रहे हैं ऊपर वाला ठीक है नीचे वाला गलत है। सो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो गया इसका नाम 3 मिथाइल कितने कार्बन है मेन चेन में हाउ मेनी 5 तो क्या होगा बताइए पेन 2 क्या हुआ सेकंड पे डबल बॉन्ड की नेमिंग तो हमने करी हुई है ना याद है आपको या वाली नॉमेनक्लेचर भी फिर से करें हम एल्केन मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन वो नॉमेनक्लेचर फिर से तो नहीं करना है बेसिक नॉमेनक्लेचर है क्लियर। देखिए ना अगर हमारे पास ऐसा भी होता है बेटा मान लीजिए अगर ऐसा भी कंपाउंड है कोई CH3 एक ही चेन है तो उसमें 1 2 3 4 इसका नाम क्या होता है 2 के बाद इन है इसका नाम होता है ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन है ना इन या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है आइन नंबरिंग है तो देख सकते हैं ये वाला नंबरिंग है क्या ये नहीं है तो किया था एल्कीन एल्काइन एल्कीन तो इसी के तो देखो ना इसमें कितने कार्बन है इसमें 4 कार्बन का नाम क्या होता है ब्यूटेन बट क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो क्या होगा ये ब्यूटीन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ब्यूटाइन रेगुलर है यहाँ पे ब्यूटेन ब्यूटीन और क्या होता है ब्यूटाइन ब्यूटाइन में पोजीशन लिखनी पड़ती है उसकी समझ रहे हैं? कल तो आप एब्सेंट थे तो फिर ये ब्यूटूइन तो आइसोमर का है इन के सबसे ज्यादा आइसोमर किए थे हमने ब्यूटीन के इसके चेन आइसोमर भी किए थे पोजीशन आइसोमर भी किए थे और ज्योमेट्रिकल बेटा घर जाके पढ़िए थोड़ा ऐसे नहीं हो सकता आगे आ जाइए लेट्स सी the day we started organic chemistry I told you have to learn everything otherwise the whole paper will appear from like it will appear to you that it has come from organic chemistry इसको रट लीजिए बहुत बेसिक चैप्टर है इजी। चलिए एक और कंपाउंड देखते हैं बहुत बढ़िया सा CH3CH3 रूल फर्स्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट ये हो सकती है ऐसे करेक्ट होगी ऐसे इसको भी मान सकते हैं करेक्ट होगा बेटा या फिर इसको मान लीजिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तीन ही आ रहे हैं कैसे भी मानिए सीधी सादी जो दिख रही है उसको मानते हैं 3 वाली और ये बाकी दोनों क्या हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट तो 1 2 3 तो 2 पे आयोडीन है और 2 पे मिथाइल है फिर लिखेंगे क्या पहले आई पहले आता है या मिथाइल पहले आता है एन आई पहले आता है तो 2 आयोडो 2 मिथाइल क्या प्रोपेन मान लीजिए अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो प्रोप 1 कर देते कर देते C2H5 यहाँ हो जाता C2H5C तब तो गड़बड़ जाती तब कोई बात नहीं करते इसको पहले ओपन करिए ये होता है CH इसको ओपन करते पहले CH3 CH2 C CH3 CH3 I तो बेटा कौन होती थी कार्बन चेन ये वाली मान सकते थे आप या फिर इसी कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा CH3 CH3 इधर लिख दिया बेटा और आयोडीन को नीचे कर दिया एक्सचेंज कर दिया इन दोनों को जिससे कार्बन चेन सीधी दिखे बात एक ही है बात एक ही है उसको अगर आप आयोडीन को नीचे लिख दिया CH3 को ऊपर लिख दिया ये दोनों सेम ही है कार्बन चेन कितनी लंबी है इसमें 1 2 3 4 तो क्या होता है इसमें 2 आयोडो 2 मिथाइल बता रहा हूं ब्यूटेन आयोडीन होता है बट इसमें लिखा है आयोडो CH2 कौन सा वाला हाँ ये CH2 होगा बिल्कुल सही माइनस से CH2 तो स्टार्टिंग की दो वैलेंसी कंप्लीट है तो दो आएगी तो इसको भी लिखिए जल्दी से क्लियर हो रहा है आपको
So now write down your certificate naming of nomenclature of up to alkane, alkene, क्या करना है? Alcohol से करना है? Start करना है. So please write down the heading. Nomenclature, longest chain rule, everything you've done, right? Write down the heading. Write down the heading. Nomenclature of alcohols. In our syllabus, we just have 3 alcohols. Okay? We'll be doing naming of aldehydes also and carboxylic also. Shall we write down? Nomenclature, naming of alcohols. First, check. 1 कार्बन वाला अल्कोहल बेटा, ऐसा अल्कोहल जिसमें कितने कार्बन है? सिर्फ एक. Alcohol means OH is the functional group. How many bonds are complete for this carbon? 1. So H3 आ जाएगा. How many carbons? 1 carbon. So name is methane. E हटाकर all. No numbering required. Is this clear? No numbering of carbon atom required. Second, we can have an alcohol with 2 carbon atoms. How many? 1, 2. This will be what? You can even write it as, this can even come like this. First carbon has CH3, CH2, and this carbon has OH. अब सुनिए बेटा, ये कार्बन चाहे लेफ्ट वाले कार्बन पे आए OH, लेफ्ट वाले कार्बन पे आए चाहे राइट वाले पे आए, बात एक ही है. बात एक ही है. तो नंबरिंग लिखने की कोई जरूरत है नहीं कि 1 वाले कार्बन पे OH आएगा, पहले वाले पे लिखिए चाहे दूसरे वाले पे लिखिए, बात एक ही है. एक दूसरे की मिरर इमेज होगी. क्या होंगे? चलिए बना भी देते हैं आपके लिए. चाहे 2 कार्बन ही तो है, इस वाले पे अगर OH आ गया, चाहे ऊपर नीचे कहीं पे भी आए बेटा, बात तो एक ही होगी. आइसोमर्स भी नहीं है, ये मिरर इमेज है एक दूसरे की. क्या है? अगर आप यहाँ पे देखिए तो कार्बन की पोजीशन आ रही है पहले कार्बन पे, इस वाले में भी पहले कार्बन पे आ रही है. यहाँ से पास पढ़ते हमने कल सीखा था. So H. So this will be how many carbons? 2. So we'll call it ethane. Remove E, it will become ethanol. Now methanol is also called, very good, that's right. Methanol is also called, the common name for methanol is methyl alcohol. Why methyl alcohol? देख लीजिए ऊपर नंबर 1 जो लिखा है, CH3 क्या होता है? मिथाइल alcohol, OH है. This is what name? Common name. And this is IUPAC. What is IUPAC? International Union for Pure and Applied Chemistry. Like in physics, we have international system, SI system, for units. Similarly, we have IUPAC system for naming the organic compounds. So this, in case if I write the condensed formula of this compound, I have C2H5. What is C2H5? Ethyl. So this can be also called as ethyl alcohol. Understood? Clear? Let's come to question number 2, third alcohol that we have in our syllabus. And that's the third one. What do we call it? Propanol. Now we can even have isomers of propanol. Let's see. Copy. We call it ethyl alcohol also. Now with propanol, 1, 2, 3. Position of H can vary. Either you have OH on the first carbon or you have it on the third carbon, it will be same. There will be mirror images of each other. But if I have OH on the second carbon, then it will be different. H, 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 H. This is H. Even their condensed formulas will be different. What will be the condensed formula of this? Last में H होगा. This is H only. This is also H, right? What will be this compound? What will be the name of this compound? हाँ? Numbering, longest chain rule तो यहाँ पे चाहिए ही नहीं क्योंकि एक ही chain है कार्बन की. There is no branch chain. We know
numbering should be such that the functional group should get the smaller number, है ना? So ऊपर वाली numbering इधर से करते हैं 1 2 3, इसमें 3 आ रही गलत 1, so this will be 1. अल्कोहल में all आता है, क्या आता है? all तो बेटा E हटा के आता है, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा. कितने कार्बन है? क्या है? ब्यूटे, मिथेन इथेन ब्यूटेन हुआ ना? प्रोप हुआ, वेरी गुड. ब्यूटेन तो 4 में होता है, इसका नाम हुआ प्रोपेन. पेन ई की जगह 1 ऑल, क्योंकि सब पोजीशन लिखनी पड़ रही है. नेक्स्ट वाला, दिस विल बी प्रोपेन 2 ऑल. इज दिस क्लियर? प्रोपेन 1 ऑल एंड दैट इज प्रोपेन 2 ऑल. नाउ लेट्स कंप्लीट. सर राइट साइड में कार्बन में एक और एस नहीं आएगा? इस कार्बन में एक और H है, ठीक है? अनु किया था तो रिमूव हो गया. This propane 1 all can also be called as OH. देखिए C3H what 7 है, क्या बोल सकते हैं बताइए इसको? प्रोपाइल alcohol. We can even write it as propyl alcohol. Clear? Easy. Only these 3 alcohols can come inside. Or what we did yesterday. इनमें ही कहीं मिथाइल जुड़ा हुआ आ जाए, याद है? देख लेते हैं वो नंबरिंग भी. लेट्स डू दैट आल्सो. We did this yesterday. हमने देखा था बेटा कि अगर किसी अल्कोहल में अगर इथाइल भी जुड़ाता है, क्या जुड़ाता है? इथाइल. अभी करते हैं. तो हम क्या करते हैं? नंबरिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे और नंबरिंग कुछ ऐसे होगी कि कौन आना चाहिए? नंबरिंग कुछ ऐसे होगी कि छोटा नंबर किसको मिलना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को. किसको मिलना चाहिए? चलिए लिखिएगा, इसको इरेज करते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. चलिए बेटा, लेट्स से वी हैव CH3 हियर एंड H हियर. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देखिए दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. हाँ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर ये भी तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही है. कितने कार्बन आएंगे अगर ऐसे मोड़ दें हम चेन को? तो 3. और जो सीधी वाली चेन है इसमें भी कितने आ रहे हैं? तो बेटर ये रहेगा अपनी सीधी वाली ले लें, ठीक है? बात तो एक ही है, 3 आ रहे हैं. अब नंबरिंग देख रहे ऑलरेडी हो रखी है 1 2 3, ऐसे 1 2 3. नाउ वी हैव अ चॉइस. वी हैव अ चॉइस OH एंड CH3. ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे हम? OH. CH3 तो अपना हाइड्रोकार्बन ही है. ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, ज्यादा मेहमान कौन है? OH. ठीक है? सो इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए. दैट इज व्हाई दिस नंबरिंग इज रॉन्ग, दिस नंबरिंग इज करेक्ट. सो व्हाट विल इट बी? इट विल बी व्हाट? बताइए. 1 पे कौन आ रहा है? ऑल. और कितने कार्बन है? 3. सो प्रोपेन 1 पे ऑल. और ये भी है मेहमान, क्या है ये? मिथाइल. कितने पे मिथाइल? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल. क्लियर? 2 methyl propane 1 all. Copy quickly. 2 methyl propane 1 all. We can add one more CH3 to it. Copy. If you have one more CH3, now you can even say, sir, if you have one more H, then OH, sorry, it cannot come. The rule says only one functional group at a time. Now, 2 alkyl group can come, 2 halogens can come, but 2 functional groups will not come. So now how will we name it? We have how many substituent groups? How many substituent do we have? 3, but it will be wrong. If you will say sir 3 substituent groups, then it will be wrong. Let's see why. Because rule 1 says we have to consider the longest carbon chain. We have to consider what? The longest carbon chain. Let's draw the longest carbon chain. Check here.
this, and then this will also come in the same chain. वो चेन में इंक्लूड हो जाएगा. काबली किस तरह से नीचे लिखा हुआ है. अरे तो आप ऐसा करिए कि CH3 को यहां लिख दीजिए, CH3 और H नीचे लिख दीजिए. बात तो एक ही है. अब लग रहा है सेम चेन है. So longest carbon chain जब आप लेंगे बेटा, so it will be what? It will be like this. What will be the substituent group? तो इससे जो हाइड्रोजन, अरे नहीं, हाइड्रोजन क्यों होगा मेहमान? नेमिंग किसकी कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोजन और कार्बन तो मेन है, बाकी जो बचे हुए हैं हमारी मेन चेन में नहीं आ रहे हैं. These are substituent groups. Let's do their numbering. 1, 2, 3 and 4. Clear? CH3 is coming at 2, OH is coming at 1. But how many carbon in the main chain? 4. So this will be butanol, है ना? ब्यूटेन होना चाहिए. TNE को हटाकर 1 ऑल कर देंगे बेटा, और 2 पे क्या कर देंगे? मिथाइल. आंसर आ गया. 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल. 2 मिथाइल व्हाट? ब्यूटेनॉल. आगे बढ़े. हेडिंग डाली जल्दी से. नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. Naming of carboxylic acid. Quickly write down. Naming of nomenclature of what acid? Carboxylic acid. Right. Okay, di, although it is not there, but it will come in chemical test. Please wait with that. I am teaching you one more compound. You will say, sir, अभी तो आपने कहा था ये नहीं आएगा. जब KMnO4 का रिएक्शन कराते हैं बेटा इथीन के साथ ना, डीकलराइज होता है, जो इसका केमिकल टेस्ट है, वहां पे एक कंपाउंड बनता है इसका. तो बताइए क्या होगा इसका नाम? ऑल आ रहा है ना, OH2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की हो गई. ये दोनों आपके कौन से ग्रुप हो गए? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स. इज दिस क्लियर? कार्बन कार्बन क्या होगा? मिथ इथ, जो हो गया इथेन. बट इथेन का ई हटेगा और कौन आएगा? ऑल. बट कितने ऑल दिख रहे हैं वहां पर? 2 ऑल है, 2. तो हो जाएगा डाइऑल. और उन डाइऑल की पोजीशन बताइए क्या है? 1,2. पक्का? पहले कार्बन पे एक दूसरे कार्बन. इसको भी इसमें ऐड करिए. 1,2 डाइऑल. प्लीज राइट इट. दिस विल कम. Now oxidation, the chemical property of this will you will find in chemical properties of ethene. Okay, oxidation with dilute KMnO4. It's a chemical test for ethene. Not only ethene, but even for ethyl. This is the test for unsaturation. पढ़ लीजिएगा, इसमें लिख दिया था. Right on next heading. डॉक्टर आप रहते OH से फंक्शन ग्रुप होता है. हाँ, मैंने कहा था 2 नहीं आ सकती, काउंसिल ने मना करा है. बट अभी मैंने बोला था कि बेटा ये आ रहा है कंपाउंड में. सुनते क्यों नहीं आप लोग? केमिकल टेस्ट है ये इथाइन का, तो ये एज अ कंपाउंड आता है. उसमें इथीन का केमिकल टेस्ट देख लीजिए, बुक ओपन करके आप, उसमें दिया है, इसलिए इसको पढ़ लीजिए. देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग. नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. चलिए, ओनली 3 आर देयर इन द सिलेबस. आई विल राइट देम क्विकली. वी नो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इज COH. If it's coming with 1 carbon, इसकी वैलेंसी H से कंप्लीट हो रही है. So we call it what? Methane. Methane में E हटाकर क्या लिख देते हैं इसमें? Oic acid. And the common name is what? Formic acid. Learn this. Next is, we can have this functional group with 1 CH3. So we call it what acid then? Ethanol. 2 कार्बन आ गए तो इथेन है. E हटाकर oic acid. Now what is this oic acid? Oic acid means these are carboxylic acid, means they have this one. Now listen, this compound can also be shown as C double bond OH. Please don't get confused, okay? Both are same. COOH लिख सकते हैं आप उसको, या फिर क्या लिख सकते हैं? COH. CO2 नहीं लिख सकते H. CO2H लिख सकते, ठीक है? इसे भी इसको ऐसे शो कर सकते हैं हम. CH3 C double bond O single bond OH, and this is known as acetic acid.
इसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नेम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये रटा होना चाहिए आपको। व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड आर देयर इन द सिलेबस। अल्कोहल में प्रिपरेशन हमारे पास है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रिपरेशन नहीं है। एसिटिक एसिड की बस प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज भी वो एसिड वाली, और उसकी नेमिंग और यूजेस दिया है सिलेबस से बस। लास्ट देख लीजिए, फर्स्ट दिस इज सेकंड, थर्ड विल बी व्हाट, व्हिच एसिड बताइए, CH3 CH2, कौन सा एसिड हुआ है? इसको C2H5 COH भी लिखते हैं। हाउ मेनी कार्बन्स, हाउ मेनी कार्बन्स? यस, वेरी गुड, वी कॉल इट व्हाट, प्रोपेनोइक एसिड। और इसका नाम थोड़ा डिफरेंट सा है, प्रोपियोनिक एसिड है इसका कॉमन नेम। व्हाट, प्रोपियोनिक एसिड। ब्रैकेट में लिखे हैं इनके कॉमन नेम्स, एंड दीज आर IUPAC, ये तीनों IUPAC हैं। दीज आर कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स। Let's see the next one. Now comes beta ketones were there before, ethers were there before, but council has exclusively written nomenclature only 3 compounds. What? Three functional groups: alcohol, carboxylic acid, and the next one, the last one, aldehyde. And then there is only one cyclic hydrocarbon given the syllabus, and it is benzene. I'll show you the structure of benzene also. Okay. चलिए, write down the heading, nomenclature of aldehyde. Nomenclature of aldehyde. Write down. Nomenclature of aldehydes. Now these aldehydes are same as alcohol. Write down where you have written aldehyde. इनका फॉर्मूला लिखिए, RCCHO होते हैं बेटा, OH। क्लियर? अगर बताइए मैंने ऐसे OH लिख दिया तो क्या एल्डिहाइड है? क्या एल्डिहाइड होगा OH? क्या हो गया ये? अल्कोहल हो गया। तो इसमें होता है C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H। समझ रहे हैं? अगर C में सिर्फ डबल बॉन्ड है और ये फिल हुआ है H से, तो ये एल्डिहाइड। डबल बॉन्ड हो और OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर सिर्फ OH है तो अल्कोहल। समझ गया? सिर्फ OH है तो अल्कोहल, सिर्फ O और एक H है, H तो फिल करेगा इवैलेंसी, H है तो क्या होगा, एल्डिहाइड। और अगर O और OH दोनों मिला लें तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस विल आल्सो कम, चेक इन द कॉर्नर। कॉर्नर में आएगा, देखिए पहला जो हमारा अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, सॉरी, वो बनेगा एक H के साथ। इसको हम लिखेंगे बेटा HCHO। इज दिस क्लियर? CHO लिखते हैं। लाइक वी राइट कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, इसको कैसे लिखते हैं? सुन रहे हैं आप? सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा फिर। मिथ का फॉर्मूला होता है मीथेन, ई हटा के अल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? अल। ओके, AL, मिथेनल, व्हाट डू वी कॉल इट? और इसका भी फॉर्मिक एसिड से बना है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अगला वाला बताइए क्या होगा? एसिटल्डिहाइड, है ना? वेरी गुड, एसिटिक एसिड जैसा। सो दिस विल also be C double bond H. You can even write it as CHO, and then we'll have CH3 और H3C बात एक ही है। How many carbons? 2. So ethanol, ethanol we call it acetaldehyde. Understood? The third one is naming का कोई फंडा नहीं है बेटा इसमें। H3C CH2 ये कॉर्नर में ही आता है हमेशा, बीच में है तो बदल जाएगा ना। अगर सेंटर में आ गया ना, सुनिए, मान लीजिए अगर ये हमारा H की जगह CH3 लगा दूं मैं यहाँ पर,
तो ये बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा? ये अलग फंक्शन ग्रुप बन जाएगा। अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो इसमें CH3 नहीं, क्या आना चाहिए? CHO। हाउ मेनी? ये कॉर्नर में आता है हमेशा। 1 2 3। 3 मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ई हटाकर प्रोपेनॉल। क्लियर? क्या था? प्रोपियोनिक एसिड ना, तो इसका क्या होगा? प्रोपिनियोल एल्डिहाइड। प्रोपियोनेल्डिहाइड। नेक्स्ट चेक, कॉपी दिस वन। चले बेटा, नेक्स्ट लास्ट वन. What will it be? It will have 4 carbons. H3C, CH2, CH2, C double bond OH. What will it be? Butanol. Butanol. And we call it what? Butraldehyde. Butraldehyde. Now some of you must be thinking that we will just learn the IUPAC name, but in exam they generally give the common name. मिथाइल अल्कोहल लिख देंगे, मिथेनॉल लिख देंगे, मिथेनॉल लिख देंगे, मिथाइल अल्कोहल लिख देंगे, ऐसे एंड सो ऑन. कॉपी. देखिए बेटा, एल्डिहाइड में क्या होता है, समझ नहीं आया तो सुनेगा ध्यान से. एक कार्बन है तो मिथेन तो समझ आ गया ना. अगर मिथेन के साथ ऐसा बना हुआ है, क्या बना हुआ है? C डबल बॉन्ड OH, और या फिर CHO दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? अगर COOH होता है, कैसे होता है वो? या तो ऐसे लिखा हो HCOOH, तो क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड. या फिर ऐसे लिखा हो COH और डबल बॉन्ड हो, चाहे O पर हो H नीचे हो, बात एक ही है. क्या होगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड. सो अगर CHO है, वी कॉल इट एल्डिहाइड. एल्डिहाइड की नेमिंग में एल्केन का E हटाकर जो भी एल्केन है अल लगा देते हैं, बस. एक कार्बन था तो मिथेनल, 2 कार्बन है और देखो क्या आ रहा है, CHO तो आ रहा है. इसको कंडेंस्ड वे में लिखेंगे तो क्या होगा? ये H3CCHO कंडेंस्ड फॉर्मूला इसका. इथेनॉल 4 कार्बन है तो 3 है तो प्रोपेनॉल. क्लियर? 5 है तो क्लियर. Is this clear? Now see, council, according to the council, only this much is there in the syllabus. But in case if the school teachers are telling you that we are doing ketones, maybe they are preparing you more for class 11. So I'll teach you, but it's not required. Council will not give the naming in the syllabus beta. Is this clear? Benzene, हाँ benzene भी देख लीजिए. ये तो एक ही cyclic compound है, जल्दी से लिखिएगा. This is the last cyclic compound. Last भी क्या है? First and the last. We call it benzene. It's given in your book. ये council ने भी syllabus में लिख के दिया है. They can even ask the what formula? Structure formula of this. Write down benzene, and it is a cyclic compound beta. We call it aromatic compound. Aromatic compound. इनमें aroma होता है, एक difference है. We call them aromatic compounds. Benzene. They have a close chain, so it has 6 carbon atoms. देखिए hexagon होता है, देख लीजिए 6 carbon atoms हैं और alternate places space में double bonds होते हैं, ऐसे. चलिए काउंटिंग करते हैं. This carbon has its 3 bonds complete, so 1 आ जाता है इसमें. This carbon also has 3 bonds complete, एक और H आ जाता है इसमें. This carbon also has 3 bonds complete, 1H, 1H. All the carbons have 3 bonds complete. So we can even show this like
CH single bond, CH double bond, CH single bond, CH double bond, CH single bond, C double bond, or CH, right? Or we also show it just like this. A normal hexagon, double, double, double alternate. This is benzene, okay? Or this we call it homocyclic. This is what? Homo. Homo का मतलब same. इसमें क्या होता है बेटा? इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है. अगर कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के कोई और कंपाउंड आ जाता है, so we call that as a heterocyclic. वो भी होते हैं बहुत सारे. They are not there in this list. Okay? So that's it for the nomenclature of organic compounds.